हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एवरीबॉडी हैव अ गुड वीकेंड। पिछला हफ्ता भी आपका अच्छा गया होगा। Post your questions, guys. Again, if you have, every week I'm taking this. So those who missed last time, मैं last time भी लिया था, so this time we might see less people. But those who were not able to ask me questions last time can ask. Give chance to others, those who will be able to ask. Give chance to others, those who already asked last time. Very good statement is. Okay. So during my placement, will I be considered as a fresher or not? If so, my answer would be fresher. Okay, so 23, don't need to worry, guys. You don't need to worry. You don't need to worry. You will be considered as a fresher. But what happens when 24 people comes in? Means 2024 pass out people comes in, you will be treated as little bit experienced as compared to them. Okay, and that's why you should be good at the technology. Therefore, you should be good at the technology. Hopefully, you got my point. मैंने क्या बोला? Therefore, as 2024 batch is coming out, you must be well versed with technology. Got my answer? Hello? Very simple. Yes, sir. बहुत सिंपल है साक्षी। पॉसिबिलिटी है, बट देखो जैसे अब आप भी किसी को ले रहे हो, हमेशा रिक्रूटमेंट के समय ऐसा सोचते जाओ कि आप खुद रिक्रूटर हो, आपके पास ताजा लोग पड़े हुए हैं जो करंट पास आउट है और उनको और आपको सेम नॉलेज है, तो आप किसको कंसीडर करेंगे? साक्षी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास दो लोग आए हैं फॉर अ जॉब, both having same talent. His age is 24, his age is 25, both having same knowledge. You tell me now to whom you should be considering. Sakshi, for your organization, just take example hum le rahe guys. What do you think? Okay, 24. yes, so that happens with you. Is that clear now? It's very Yes, simple, sir. है ना? तो आपको उतना उसके कंपटीशन में को बीट करना है, ठीक है? Next, in selenium, Ganesh, last time also I told you, I think this thing. Okay, Ganesh, hello, you're there? Hello, Ganesh. तो क्या आंसर था गणेश लास्ट टाइम? बोलो, याद भी रखना आपको। देखो, सो इन सिलेनियम HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो फिर से anyway, in selenium and HTML, which topic is important? See, you can always skip these two topics. Okay, skip. Okay, but HTML you should be knowing. HTML you should be knowing. अच्छे से करो इसको। ओके गणेश, यू गॉट माय आंसर, है ना? CSS जावास्क्रिप्ट ये होगा। दूसरा क्या होता है ना गाइस, ये जनरल क्वेश्चंस है, तो क्या होता है बहुत से बार डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं इसके, क्योंकि ये ह्यूमन स्पेसिफिक होते हैं, कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, कंपनी अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स देती है, अपने अपने हिसाब से हायर करती है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई द थिंग इज दैट। एनीवे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस कीप पोस्टिंग क्वेश्चंस, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। एनीथिंग? And everybody please prepare, because we did tie up with the MNC, one company, where they want
super 20 people, okay, every month, where after your training everything done, that company gives you training, okay. तो इसमें evaluation होता internship, I would say, but it is not an internship, working after completion of your syllabus. तो अभी मैं देखा हूँ कि out of how much 160 people, 20 people उन्होंने select किए just for training, okay, just for training. So I want you all to study so that you will get selected in that. क्या बोला मैंने बोला कि आपको अपने साथ कंपटीशन करना है आपके टीममेट्स के साथ, ताकि आप उनसे थोड़े से ऊपर देखो, और जब ये कंपटीशन आ जाएगी obviously you will be achieving, you will be in the achieving side, winner side, okay. So that is how it is. Don't get confused, things are simple. Keep motivating yourself, keep asking yourself what you are doing is correct or not. That is how it is. Ask me questions. सर टेस्टिंग के लिए पूरी कोर जावा इम्पोर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। सर टेस्टिंग के लिए पूरी कोर जावा आनी चाहिए क्या? द आंसर इज नो, नो, इट इज नॉट नीडेड, बट द बेसिक थिंग इज लाइक, अगर मैं इसको बात करूं, देखो आना तो सब चाहिए, बट मिनिमम सोचो आप कितना कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आना क्या चाहिए, ये तो लालच होता है ना। जैसे आप कुछ खरीदने गए तो आपको भी लगता है कि और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, एक सिंपल देखो, आपको क्या आना चाहिए सबसे पहले एक टेस्टर बनने के लिए, कोर जावा, उसमें क्या आना चाहिए, उप्स कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, लॉजिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, और कलेक्शन टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, कलेक्शन एंड मैं बोलता हूँ मोटा मोटा इतना आना चाहिए। बाकी तो क्या है, क्या नहीं आना चाहिए, क्या वी कैन स्किप बट नॉट कंपलसरी, ये कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये मार्केट है टेक्नोलॉजी का, जितना ज्यादा आपको आएगा उतना आप खिलोगे। बट फिर भी उन लोगों के लिए, दोज हु आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, okay, those who are from non-IT background, skip, जैसे गार्बेज कलेक्शन आप छोड़ सकते हो, ओके, जेडी के 8 छोड़ दो आप, इतना कोई दिक्कत नहीं है, लैम्बडा वगैरह आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक जो आपको मतलब टफ लग रहे हैं, मैं उसमें नाम नहीं लूंगा, बट वो टॉपिक्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कोई अल्गोरिथमिक है, यू कैन, नो प्रॉब्लम, बट मैं सिर्फ इसमें बोल रहा हूँ ग्रास्पिंग के हिसाब से डिसीजन लेनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी ने पूछा कि सर डेवलपमेंट लूप की टेस्टिंग है, हमेशा का क्वेश्चन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग। गाइस प्लीज मिस्टेक मत कीजिए, मैं बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। इफ यू आर, मेरे हिसाब से सीधा बोलूंगा, नॉन आईटी है आप, बीसीए है, बीएससी है, या और कोई दूसरा बैकग्राउंड है, और इफ समथिंग डिफरेंट देन we take computer science, you can always go for this. बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी जा सकते हैं, जस्ट ये एक आइडिया है, आप बता रहा हूँ गाइस, एक समझ में आएगा सबको। हेलो, मैं लिख देता बाबा, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। हेलो, एवरीबॉडी इज एबल टू रीड दिस? 40 लोग हैं, Yes, sir. सब लोग देख लो। अरे अभी कंपटीशन बहुत है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, सुन, गणेश ने कुछ लिखा, आपने न्यूज पढ़ी क्या गई? लो, मैंने Yes, नहीं sir. बोला कि ये आपके में से किसी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। कैसा हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। बहुत मार्केट बेकार होते जा रहा है, तो इसमें टैलेंटेड लोग चाहिए, बहुत टैलेंटेड, ओके। सो इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आप वाइज डिसीजन लीजिए डेवलपर के लिए। अभी मेरी एडवांस जावा की बैच यहाँ
मेरी नहीं है। 177 बैच में का कोई है इसमें? 177, हेलो। यस सर। 178 में का कौन है अभी? कोई है 177 बैच? हाँ यस सर। हाँ, अब मैं आता हूँ उसमें। अभी आप देख पा रहे हो लॉजिकल स्किल, जैसे कल मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था उस बैच में आके, राइट? कल का किया क्या आपने? पता नहीं मुझे। कल अटेंड किया क्या आपने अभी? हाँ है सर। तो वो लॉजिक लोगों को आ रहा था क्या? जो मैं मैक्सिमम सैलरी कुछ बोल रहा था, एक लॉजिक है, इतना ज्यादा यूज टू नहीं थे, करेक्ट? हाँ या ना? नहीं सर। तो इसका मतलब तकलीफ है ना यार। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप डिसीजन बहुत अच्छे से लीजिए। कुछ लोग जा रहे हैं, मतलब आप जाएंगे, ऐसा मत करो। हेलो, एवरीवन इज ओके विद दिस? अगर आप में से कोई कोर जावा वाले लोग हैं, क्लियर? आप में से कोई कोर जावा कर रहा है अभी? जस्ट न्यू एडमिशन वगैरह कोई है कोर जावा? हेलो। यस सर। हाँ, आप डिसीजन बहुत सोच के लीजिए। कैसा, मार्केट बहुत बेकार हो चुका है। सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। कितना ज्यादा टेंशन लेके क्या करोगे यार? मतलब जीवन भी तो जीना है। ये क्या, ये कंपटीशन चलती रहेगी, ये लोग परेशान करते रहेंगे हमको कॉर्पोरेट्स। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी लाइफ को बेकार कर देंगे इनके कारण। देखो, अभी पुणे से शिफ्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कभी बोलेंगे रिसेशन आ गया, क्या कर लोगे आप? समझे ना? यस, ये क्वेश्चन किसी का था। यस, if exam is if exam is completed, if exam is completed, ये समझा सबको? अगर आपकी एग्जाम कंप्लीट तो आप सबसे ताजे तवाने हो, मतलब गाइस आप सबसे फ्रेश हो, बिल्कुल। और गाइस, सब लोगों ने देखा कि आपकी बैचेस में आजकल सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी लड़के होते हैं, किसी ने ऑब्जर्व किया कि? हेलो, डिड यू ऑब्जर्व? यस सर। हेलो गाइस, है या नहीं है? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सर है। हाँ तो आप मुझे हाँ। बताइएगा, ये जो लोग पास आउट है उनको एक मैसेज क्या जाता है, इससे बताओ बहुत क्लियरली। व्हाट मैसेज दे शुड बी टेकिंग आउट ऑफ इट? कुछ तो सीखना पड़ेगा ना हर चीज से। व्हाट यू थिंक? आपके साथ हम्म, वाला ही कोर्स वो कर रहा है। हम्म, अर्श, बोलो जरा खुल के बोलो सब लोग, क्या है? सर कंपटीशन बढ़ गए हैं, मतलब नंबर ऑफ हाँ, स्टूडेंट्स इंक्रीज फॉर द सेम। एंड और वो अभी वो एज में कम है, वो हाँ, सेकंड ईयर एज में, में। थर्ड ईयर में। कल ही एक कोई कॉलेज है, विद्या भारती और समथिंग, वहां से 13-14 लड़के सेकंड ईयर के एडमिट हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दे एनरोल्ड। अभी बहुत सारे लोग रेफरेंस देते तो आते हैं। बट आप मुझे बताओ अभी, मतलब इससे क्या होगा कि आप लेट हो, तो आपको समझ लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज ओके व्हाट आई एम सेइंग? जो भी लोग सुनाई दिया क्या? पानी डाल। यस। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ऋत्विक, यस, बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि इसको जो 2024 या 2023 है, 22 है, ये लोगों ने अभी लगाया। यस, ओके, नेक्स्ट। ये भी हो गया। श्रुति, आपको आवाज आ रहा मेरा? नेक्स्ट, और क्वेश्चन पूछिए। एक मिनट, एक क्वेश्चन और है। हम्म, ये हमेशा डीएसए कौन से टॉपिक के लिए चाहिए? डीएसए के कौन से टॉपिक करने चाहिए? मैं तो बोलूंगा भाई सॉर्टिंग का करो। कलेक्शन में अगर आपको करना ही है, बहुत अच्छे लड़के हैं आप अच्छा पढ़ाई करते हो, रोज 4-5-6 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हो, तो कलेक्शन का क्यूब वगैरह कंसेप्ट पढ़िए आप, बराबर। मैप का स्ट्रक्चर पढ़िए। उसके बाद डीएसी की अगर बात करूं, तो आप हैकर रैंक, एक मिनट, आपको ये करना है,
हैकर रैंक एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, है ना, तो अपने आप डीएसए होगा। प्लीज डोंट प्रिपेयर डीएसए स्पेशली। चेतन, यू गॉट माई पॉइंट। ये हैकर रैंक का अगर पॉइंट कर लोगे ना तो आपका आधा काम सॉल्व हो गया। चेतन, डिड यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. अरे ये बढ़िया सा इसमें सॉल्व करो। आपको हैकर रैंक कहता है लीड कोड, यू नीड टू सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम देयर पजल्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर अब इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ पे बुद्धि लगाओगे बताओ, समझे ना, कहाँ करूँ क्या करूँ। तो बेटर है कि आप इस वे में करेंगे। राइट गाइस, एवरीवन ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। Ask me question. What topic of Java and Spring Boot is most important for future? Yes. इसमें ना सारे APIs होने चाहिए, एनोटेशंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की APIs आपको करते आनी चाहिए। दूसरी चीज, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग का अंतर समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, ऋत्विक, इसमें ना आपको टेबल स्ट्रक्चर खुद से बनाने की आदत लगानी है। मतलब जैसे एयरलाइन का आपने सोच लिया, तो एयरलाइन के प्रोजेक्ट में कौन से टेबल आएंगे, ये आपको ब्रेन लगाना। हम तो देते हैं आपको, इंस्टीट्यूट 2 नहीं 3 प्रोजेक्ट का देगा, बट एक तो भी प्रोजेक्ट आपको खुद से टेबल स्ट्रक्चर बनाना है। इससे स्प्रिंग बूट में कौन सी एपीआई बनानी है सिंपल हो जाएगा। ऋत्विक, ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर, टेबल स्ट्रक्चर मतलब ये डेटाबेस में ही ना? हाँ, डेटाबेस में, जबकि वो स्प्रिंग बूट से लेना देना नहीं है, बट ना हाँ हाँ उस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी कैसा होता है, आपको टेबल दे ठीक। देते हैं और आप कर लेते हो बराबर। हाँ हाँ और ऋत्विक कभी सोच के देखो कि मुझे ना बाइक सर्विसिंग सेंटर खोलना है, हम्म कौन से टेबल लगेंगे उसके लिए? हम्म मैं दे दूंगा, पर मुझे बताओ इंटरव्यू या फ्यूचर में जब कंपनी में काम करना है तो आपको बाइक सर्विसिंग पे करना है क्या? नहीं। बट आपको एक आदत लगानी है कि ऐसा रहा तो ऐसा करना है, आपको वहां तक सोचना है। अब समझे? हाँ हाँ और ऋत्विक, सब लोग मिस्टेक क्या करते देखो, आप चाहते हो कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट लूं तो मैं टेबल बनाऊं, मैं बनाता हूं, बट कभी भी आप एक जनरल टॉपिक पे अगर नहीं बना सके, इसका मतलब आप वहां तक सोच नहीं पा रहे हो। करेक्ट है कि नहीं है? यस यस बराबर। और वो मिसिंग रहता है कि नहीं मैक्सिमम, बताओ स्टूडेंट्स की लाइफ में। हाँ अब जो अच्छे कॉलेज के होते हैं, सिम्बासिस बोलो, PICT बोलो, COEP, IITS, NIT, वो लोग टीचर से एक चीज लेते हैं और 10 चीज खुद की बनाती है। मानते हो कि नहीं मानते हो ये भी? हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो आप IITian नहीं है, पर ये नहीं कर सकते क्या, सर ने प्रोडक्ट के साथ कुछ किया, प्रोडक्ट नाम के टेबल के साथ, बराबर? हम्म तो आपने प्रोडक्ट के साथ करना ही नहीं, जो कुछ एम्प्लॉय टेबल के साथ कर सकते हो कि नहीं? हम्म मिनिमम इतना। यस जैसे टेस्टिंग वाले, अगर सर ने redbus.com को टेस्टिंग करके दिखाई, तो स्टूडेंट्स ने amazon.com खुद से करनी चाहिए कि नहीं? हाँ तो ये मिसिंग पॉइंट गाइस, बस 1 मिनट। एवरीवन अंडरस्टूड गाइस व्हाट आई एम सेइंग? तो ऋत्विक, मैं जानबूझ के इस टॉपिक को ज्यादा ये कर रहा हूँ, क्या आपको समझ आया ये चीज जो मैंने बोली? हाँ बराबर। मोटा मोटा एक चीज आप समरी करके दो अभी ऋत्विक मुझे, क्योंकि ये सबके लिए गाइस जो ये बोलेंगे, बोलो। हाँ हाँ सर, मतलब जो हमें क्लास में पढ़ाया जाएगा तो हमें वही टॉपिक हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन हमें कुछ डिफरेंट मतलब मतलब डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करने होंगे उस टॉपिक पे, ना कि जो हमें पढ़ाया जाए। जैसे अभी
सपोज कि अभी हम वही एपीआई बना रहे हैं, तो अगर उन्होंने एपीआई में सपोज कि बुक इसका रेफरेंस लेके बनाया है, तो हम कुछ और लेंगे, हम कार लेंगे या फिर शोरूम लेंगे, ऐसा कुछ बनाना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। बाकी लोगों को समझ में आ गया ये चीज? जैसे इनहेरिटेंस है, सर ने एनिमल सुपर क्लास बनाया और डॉग सब क्लास बनाया, आप कुछ और कीजिए ना, कस्टमर करो और फिर रिटेल कस्टमर करो खुद से। बट ये मिसिंग पार्ट है। सब बुक लिया है तो बुक मत लीजिए, अभी आप कार लीजिए। अब होता क्या है, एटलीस्ट वर्ड चेंज होंगे ना, तो आपके जो ब्रेन की नर्व जो सीधी है थोड़ी तो ऐसी ऐसी होगी। ऋतिक मानते हो कि नहीं? थोड़ा तो चेंज आएगा आप में, थोड़ा हाँ, थोड़ा सोचना पड़ता है फिर। थोड़ा तो सोचना पड़ता है। देखो, कार बुक में क्या है, पेजेस है, बुक में क्या है, बुक ऑथर है। ओह, कार करना है तो अब देखो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, कार का ओनर कौन है, कार का आईडी क्या है, कार का मॉडल क्या है। ये एक सोच खुद से हमने लाई, राइट? तो हाँ, guys, everybody understood what we were talking about the thing. It is very important, guys. That's why I stress more on this topic. Hello others, write down yes, understood if you understood. It's very important, which is missing these days, which is missing, which cannot be done except अगर आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा नहीं देते हो। फिर से मैं यस लिखते जाओ तब तक बोलते रहता हूँ। अगर सर ने बुक लिया है, आपको कार लेनी है। सर ने इनहेरिटेंस में अगर एनिमल और डॉग लिया है, आपको कस्टमर और रिटेल कस्टमर लेना है, ठीक है? इट इज नेसेसरी दैट मच टू डू डीएसएस जॉब? नो, नो ऋत्विक। मैं बहुत सिंपल आपको बता दूं गाइस, आज की डेट में ना ये अलग से हायरिंग हो रही है। बहुत ही क्लियर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है, देखो ऋतिक ने। सब लोग क्वेश्चन देखो, मैं भी स्ट्रेट आंसर देता इसका। नो प्रॉब्लम। अब सही है? हेलो ऋतिक? हाँ, हाँ सर। हाँ, बट मैंने क्या बोला, अगर आपको करना ही है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये क्लियर? बस, तो थैंक यू गाइस। एवरीवन, मोर क्वेश्चंस? I need more questions. Any guidance you need more? How much aptitude is required and how to prepare? Yes. Yes, for freshers aptitude is required or not? Yes. 23, 24, 22 चाहिए। Yes, it is required. How to prepare? It is not by doing a classes. Yes. क्लासेस नहीं करना है इसके, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा माइंड। अभी वो एज नहीं रही है हमारी करने की। सेल्फ स्टडी थोड़ा थोड़ा एक रूटीन बनाइए, एटलीस्ट गो थ्रू कर लीजिए 1 आवर डेली। आप समझ लीजिए इसके ऊपर, जब नहीं कुछ ना कुछ तो समझेगा ना। यस, इट इज रिक्वायर्ड, तो आपको करना है। डेली अपना शेड्यूल बना लो कि मैं 1 घंटा यही करूंगी, यही करूंगा, और फिर बाकी समय में जावा करूंगा। क्योंकि अभी गाइस सिस्टम जो है, आप लोग पता नहीं मार्केट से अवेयर हो कि नहीं है, मार्केट थोड़ा सा बेकार चल रहा है। पर ये दिन भी तो चले जाएगा, बट ये दिन जब चले जाएगा तब आप सबसे लोएस्ट नहीं रहने चाहिए, तब आप हाईएस्ट रहने चाहिए। ये जो आपको समय मिल रहा है, जैसा कंपनी क्या होता है ना गाइस, जैसे हमारा एक मैं बिजनेस चलाता हूँ, तो जब हमारा लो पीरियड आता है, जब आपकी एग्जाम्स होती है, तो हमारे पास कम एडमिशन होती है। पहले वर्ड समझा क्या गाइस? हेलो, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? बाकी लोग भी प्लीज कीजिए इसको। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी में इंप्रूवमेंट्स करते हैं, जो प्रोसेसेस है उसको सुधारते हैं, ताकि जब उनकी एग्जाम खत्म हो जाए तो हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। उसी प्रकार अभी जो रिसेशन है, ये है, वो है, ओपनिंग थी, तो आपने खूब ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि जरा सा 1 महीना अच्छा हो जाएगा। अभी देख लीजिए, अभी इलेक्शन हो जाएंगे ये, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ओपन हो जाए फिर से मार्केट, इफ एनडीए कम्स टू पावर, उनका इन्वेस्टमेंट होता है। इस टाइप से चीजों को आपको ग्राफ करना है। अभी क्या होता है, रिसेशन आता है और फिर आप पढ़ाई नहीं करते हो, दैट मेक्स योर प्रॉब्लम। ओके, दैट मेक्स यू प्रॉब्लमेटिक। एंड इट इज बूमिंग इन फ्यूचर? यस फॉर श्योर, बट नॉट राइट नाउ। यस फॉर श्योर, तो यस फॉर श्योर, बट आई वुड से पाइथन अच्छे से कीजिए इफ यू आर फ्रॉम द पाइथन। जैंगो अच्छा कीजिए। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जॉब में जाने के बाद बहुत अच्छा कीजिए। once you got the job, इसके ऊपर फुल फोकस कीजिए। once you got the job, then you can fully focus on this। अभी नहीं,
ठीक है, अभी मत कीजिए। नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों ने क्या करना चाहिए? हाँ, देखो सबसे पहले नॉन आईटी वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आईटी, विदाउट आईटी नो ऑप्शन, मतलब आपका ऑप्शन नहीं है। अब तो विदाउट आईटी नो ऑप्शन, क्या करोगे मुझे बताओ। चलो सब लोग बताइए, अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस आपका है या बी मैकेनिकल है, तो आप मुझे बताइए अभी मैकेनिकल में जॉब्स है बट पैकेज मिलता है क्या गाइस, आप बताइए। हेलो, नहीं सर, जॉब जो कोर में जॉब रहती है उसमें मैक्सिमम टाइम एक्सपीरियंस ही मांगते हैं प्राइवेट वाले इसमें। बराबर, और पैकेज भी नहीं है ना, ये भी तो एक्सेप्ट करेंगे। नहीं पैकेज, हाँ वो भी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस भी वहाँ पे थोड़ा ज्यादा मांगते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, और एक्सपीरियंस के बाद भी खूब पैकेजेस मिलते हैं क्या? नहीं। नहीं। अब भाई ऑप्शन नहीं है ना आईटी के सिवा। अब आईटी में कैसा है, आप कम सैलरी से चालू करो। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने, बहुत सारे लड़के याद रखते हैं इसमें, आईटी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पैकेज मिले, तो स्टार्ट में सेम ही है, वही 7-8 हजार, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, वैसे पैकेजेस मिलते हैं बहुत से बार आईटी में भी। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, ये हो गया पहला। दूसरा, क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए? यस, आपको ब्रशअप के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा आवर्स you need to put, no option, extra hours लगाने पड़ेंगे। there is no rocket science, okay? बार बार वही वही चीजों को करना पड़ेगा। आईटी वाले बंदे को हो सकता है 2 बार में याद हो जाए, आपको 4 बार में, क्योंकि आपने देखा नहीं है पहले ना। उसके जो 4 साल आईटी में गए हैं, उसको आपको बार बार पढ़ के डोमिनेट करना है। आपने नहीं किया आईटी में, एक्सेप्ट करना है पहले, दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचना है। ठीक है, और अपने आप हो जाएगा, कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है गाइस, इट्स अ स्मॉल थिंग, डोंट वरी अबाउट इट। कीजिए। बाकी आपको यहाँ पे लाइव सपोर्ट का यूज करते हो कि नहीं सब लोग? लाइव टेक्निकल सपोर्ट किसी ने किया है कि नहीं? हेलो हेलो, इज दैट एनीबडी हैव Yes, यूज्ड? sir. कितने लोगों ने अभी तक यूज किया है? राइट डाउन यस अगर आपने यूज किया है। है ना? तो गाइस, अब देखो आप नॉन आईटी है तो आपको कनेक्ट करना है, प्रॉब्लम्स को पूछना है, अपने सिस्टम में रन करके लेना है। ये भी समझा सबको? जो लोग नॉन आईटी, राज अग्रवाल आपको क्लियर है? प्लीज यूज कीजिए। जिनको पता नहीं, ऐसा कोई है जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है, पहली बार सुना है? अमर, अमित, अर्श, अथर्व, भूषण, गायत्री, मंगेश, हेलो, पता है क्या मंगेश, राज? हेलो 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 गाइस, ये कहीं पे भी नहीं रहता है, पूरा तुम छान मारोगे पुनः नो है। यहाँ पे इंस्टेंट आंसर का मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। पता है कि नहीं पता है, इतना तो बोल दो भाई। 40 लोग हैं, ऐसा कर दो वहां पे थम, 2 मिनट लगेंगे पता है आपको। सर। बाकी लोगों को पता है कि नहीं पता है? कुछ एक्टिव करो, थम थम करके दिखाओ। और सबको थम करते आता है क्या? चलो ऐसे करो, थम करो। चैट बॉक्स में ढूंढो, सब लोग, लड़के लड़कियां दोनों ढूंढो, मेरे को हर किसी का देखते हैं आपको। इधर मत करो चैट बॉक्स में, वहां करके दिखाओ। वो नहीं, वहां वहां करो तो सब लोग देखो, वहां स्माइली वगैरह आ रही होगी, करो ऐसे, करो। यस गुड। और बाकी लोग करो, हटाओ मत, करो तो। आई वांट टू सी। राज इधर करो, धीरज इधर, ये वहां पे करना है, ठीक है? तो या पार्टिसिपेंट्स में सोमनाथ, मुझे पता नहीं इधर, ओके इधर किया तो इधर दिखता है क्या? मतलब वो ऐसा नहीं है क्या, पार्टिसिपेंट में दिखता नहीं है क्या? सॉरी, हेलो, मुझे लगा इधर दिखता होगा। चेतन गई तो, चेतन आपका मेरे को इधर दिख रहा है, आपने क्या किया? मतलब पार्टिसिपेंट में वो सही है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गाइस पार्टिसिपेंट में देखो तो ऐसा दबा के पूछता है। सर रिएक्शंस में ऑप्शन है। हाँ रिएक्शन देखो गाइस एक बार। चैट बॉक्स मत खोलो, चैट बॉक्स नहीं खोलना है ना? हम्म, तो सब लोगों को ये लाइव सपोर्ट का हेल्प लेना है। नॉन आईटी के लिए इतना बड़ा मैंने इंतजाम करके रखा है गाइस, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। ओके सर, फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है क्या? यस ओपनिंग्स है
है। सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आज की डेट में करना पड़ रहा है इस पैकेज के लिए, थोड़ा सा हर कोई फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को। इवन एमएनसीज क्या हो गया ना, जो पैकेज देने वाले थे कॉग्निजेंट वगैरह, दे स्टॉप्ड हायरिंग एक्चुअली, ठीक है। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्लियर। सो yes, openings are there is no problem at all. Yes, there is a opening, don't worry about it, okay. So how should we prepare if you want to change a job? Guys, इसमें प्रोजेक्ट का ये करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली देयर विल बी पैकेज एक्सपेक्टेशन, वो सही है। आप अभी देखो ये क्वेश्चन में मैं डेफिनेटली बोलूंगा यू मस्ट हैव गुड पैकेज एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यार आपके पास ना एक्सपीरियंस है, आप छोड़ना ही नहीं। जब तक आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलता आप क्यों छोड़ोगे भाई? एक जगह 2 लाख के लिए मत जाना, 2-3 लाख नहीं, 4-5 लाख का डिफरेंस मिले ना ऋत्विक, आप समझे क्या? ऐसे एकदम छोटी छोटी लाइफ नहीं। अभी अगर आपने 1 लाख के लिए कंपनी छोड़ी ना, तो फिर से 1 साल बाहर रुकना पड़ेगा। ऋत्विक, यू गॉट माय पॉइंट? हाँ यस। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पैकेज बढ़ा एकदम 3-4 लाख की तो भी गैप हो, 20,000 रुपये दर माह आपके सैलरी में वृद्धि होनी चाहिए, तभी आपको करना है, अदरवाइज नहीं। प्रिपेयर कुछ नहीं, प्रोजेक्ट लगाइए और क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस लेवल के ट्रिकी क्वेश्चंस ढूंढिए एंड जस्ट गो अहेड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कंपनी में ओपनिंग है, मेरा एमएससी पास आउट है, प्लेसमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? त्र्यंबक, जो ओल्ड पास आउट होते हैं उनको कम कॉल आते हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ओके। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। पढ़ाई पे नहीं करो इस पर, ठीक है? पढ़ाई चाहिए होगी, ठीक है? नहीं करना है गणेश, उसको छोड़ दो, ठीक है? गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं थोड़ा ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का थोड़ा कंफ्यूजन था सर। बोलो क्या कंफ्यूजन है? मतलब ओवरराइडिंग कैसे, मतलब जब ओवरराइडिंग होती ना वो कैसे होती, ये समझने के लिए क्या करना है? पहले हम ओवरलोडिंग करते हैं, बाद में जब दूसरे सेकंड क्लास में सर मेथड ओवरराइडिंग होती है, वो पहले क्लास वाले हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसा समझते ना, देखो आज मैं आपको ये दोनों बताऊंगा, बट आपका क्वेश्चन ऐसा समझते कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से रिलेटेड नहीं है। इस कंसेप्ट को कैसे समझना वो सीखते हैं यहाँ पे, चलेगा? हेलो? हाँ सर। और साइड बाय साइड आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना? पाइथन वालों को भी यही चाहिए। अब सुनो सब लोग, आप लोग ना गाइस जब भी पढ़ाई करते हो ना इस टाइप की, कृपा करके इसकी इंग्लिश में मीनिंग ढूंढने पहले, ओके? ये पहले सबको मेरा वर्ड समझा क्या? आपका प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कंसेप्ट समझने में? सोमनाथ, आई थिंक, राइट? सोमनाथ, आप मेरे से बात करते रहेंगे? यस सर। तो इंग्लिश में मतलब बताओ, कोई भी चीज ओवरलोड हो गई मतलब क्या होता है? एक ट्रक ओवरलोड है मतलब क्या होता है सोमनाथ? ज्यादा। हाँ, मतलब पहले कुछ था उसको और भर दिया, बराबर? यस सर। दूसरा ओवर राइट कर दिया। आप बोल रहे हो बैठ, मैं बोला खड़ा हो, मतलब मैंने आपका मन ओवरराइड किया, कुछ समझे क्या? ओवरराइड करना। आप बोल रहे थे मैं चलूंगा, मैंने बोला नहीं तू चलेगा नहीं, चल बैठ। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरराइड। किसी भी चीज को छुपाना। हेलो, क्लियर? अच्छा। हाँ। पहले ये सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग लानी है। चाहे आप इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो ना, पहले उसको सोचो। इनहेरिटेंस गया उधर भाड़ में, जावा जावा मत सोचो। आपका प्रॉब्लम क्या, आप जावा सोचने लग जाते हैं। जावा नहीं, फॉरगेट अबाउट द जावा। सोचो कि यार इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, घर में भी इनहेरिटेंस होता है, मतलब पिताजी की चीजें चाइल्ड में थोड़ी थोड़ी तो आती है, कलर आता है, चेहरा आता है, थोड़ा बहुत आता है, कैरेक्टर आता है। मतलब बाद में आप जावा से रिलेट करो, देखना आप आधे से ज्यादा चीजें मैच होगी कि नहीं होगी। चलो एनकैप्सुलेशन, चलो बताओ जनरल लाइफ में एनकैप्सुलेशन क्या होता है? सोचो इंग्लिश में। एनकैप्सुलेट करना है मतलब क्या सोमनाथ? एनकैप्सुलेट करना है। ये माउस ना एनकैप्सुलेटेड है इंग्लिश में। कवर करना, क्या ओंकार बोलो क्या? किसी चीज को कवर करना। हाँ, और इसके अंदर ये सब कुछ है, कुछ तो होगा ना, ये सब ये मटेरियल वायर वेयर सब है, ये एनकैप्सुलेट हो गई। अब जावा तो भाई 3 चीज पे चल रहा है, क्लास वेरिएबल मेथड, क्लास वेरिएबल मेथड, क्लास।
Right. वायर नहीं रहेंगे उसमें वेरिएबल मेथड रहेंगे ना, और क्लास। ऐसा आपको लिंक करना है, लिंक, तब जाके आप उस चीज को समझ पाओगे। सब्जेक्ट क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट एनकैप्सुलेशन पढ़ लेते, बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल एंटिटी। अरे पहले सोचना चाहिए था कि एनकैप्सुलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। अब वापस आते इस टॉपिक पे, ओवरलोड। तो देखो यहाँ बढ़ाना, ओवरलोड करना, मतलब ऐसी एक मेथड है कि ना, और एक और दूसरी मेथड है। देखो पहले कितने पैरामीटर, अब जावा के हिसाब से पहले एक पैरामीटर था, अभी दो है, दो के तीन भी हो सकते हैं। तो ये हो गया ओवरलोडिंग, मतलब बढ़ाते जाना। तीसरा क्या होता है, ओवरराइडिंग, मतलब जब तक दो लोग नहीं आएंगे। जैसे सोमनाथ ने बोला मैं चलूंगा, किरण उसका बॉस है, नहीं बोले तू बैठ चुपचाप, मतलब दो लोग लग रहे हैं उसमें, डोमिनेटिंग लग रहे हैं। सोमनाथ और किरण एक सेम नेचर के चाहिए, एकदम प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेगा उसको। मतलब नेचर, मतलब ये हो गया कि ए और बी में रिलेशन चाहिए। अब यहाँ पे एक मेथड है आपकी। अब ऐसा भी नहीं कि वो बोल रहा मैं चलूंगा और मैं बोलूंगा खाना खाओ। अरे कुछ रिलेशन तो होना चाहिए ना, तो रिलेशन किससे करते हैं हम, मेथड से, मतलब सेम सेम होना चाहिए। अब तू यहाँ लिख भाई, मैं चलूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, तू रन करेगा। हेलो सोमनाथ, आर यू गेटिंग? हाँ यस सर। तो इस वे में उसको मीनिंगफुल बनाना है। अब ये हो गया ऑलरेडी। अब ना कस्टमर अपना इधर बैठा हुआ है, अब वो इसको कॉल करे, इसको करे, ये दोनों के ऊपर खेलता है, तो बोलेंगे मैं ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कॉल कर रहा हूं। पर ये देखो, ये किरण ने बनाया, ये सोमनाथ ने बनाया। सोमनाथ क्या बोल रहा है, सोमनाथ बोला किरण ने ओवरलोडिंग की है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ सर, यही मैंने पॉइंट है। नहीं की है, सोमनाथ क्या बोल रहा है, मैंने नहीं की, किसने की, किरण ने की है। सोमनाथ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। तो मेन मेथड सोमनाथ लिखेगा, बट सोमनाथ ने ओवरलोडिंग की क्या, सोमनाथ क्या आपने की क्या, नो, ये किसी और ने की है। दूसरा, ये ओवरराइडिंग हुआ है। अब ये किरण ने किया है, ओवरराइडिंग किसने, किरण ने की। सोमनाथ क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, करेक्ट। सोमनाथ इसको कॉल करेगा, सोमनाथ को किरण ने ओवरराइडिंग करने की वजह से रन करेगा। पर इसको हटा दो, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा सोमनाथ को। हेलो, इसको हटा दिया, अब क्या आउटपुट आएगा, चलूंगा। अब समझा ना। तो सोमनाथ आप क्या हुए, कस्टमर, ओवरराइडिंग आपने नहीं की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। तो इस वे में कंसेप्ट को थोड़ा समझना, आपको इजी जाएगा समझ। गॉट माय पॉइंट नाउ? ओके। नो ऋतिक, नॉट नेसेसरी बट गुड टू हैव। अभी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट अच्छा हो गया आप तो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो लोग पूछ नहीं रहे। गुड टू नो बट नॉट कंपल्सरी, गुड टू नो बट नॉट कंपल्सरी। सो आई थिंक गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो पूछिए। ओंकार ने पूछा है, गाइस एआई से कुछ नहीं होने वाला है, आप एआई का टेंशन मत लो, आपको सिर्फ यूज करते आना चाहिए, ठीक है। यस, मे बी if you do not make yourself smarter by spending much time on technology। ओंकार पढ़ो यार मेरा आंसर। हेलो ओंकार, समझे ना, इसका मतलब समय आ चुका है कि आपको अभी ज्यादा समय देना पड़ेगा, समझे ना, क्लियर? Yes, Ritwik. But Ritwik, yes, you can visit always, but better, मतलब आपको immediate चाहिए तो लाइव सर, ओके। क्योंकि कैसा है, यहाँ पे क्लासेस चलते रहते हैं, तो आपका बैच अलग रहता है, तो थोड़ा बहुत किसको मिलना है, क्या मिलना है, उसी में समय चला जाता है किसी चीज़ का, ठीक है ऋतिक। तो बाकी आप ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को हमेशा मिल सकते हो, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को मिल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन गाइस? या मैं रात में मिलूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहती, ठीक है गाइस। क्वेश्चंस? हेलो हेलो हेलो,
So, which version you are familiar? Yes. Sir, recently I gave interview. मैंने इंटरव्यू दिया था. Where they asked which version I am familiar with as a fresher. तो आपने क्या बोला? बोल दीजिए 8 बोलिए, 17 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 11, any version you can tell. बट जो आपने यूज किया, you must be aware of it. समझे? या कौन से वर्जन में आपने काम किया. देखो गाइस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसलिए पूरे आईज ओपन चाहिए आपकी. ओके, तो आप 17 बोल सकते हो. आप आज अपने इंग्लिश में देखिए, वर्जन बताना है वैभव. ठीक है, और वैभव इससे आपको ये भी पता चला होगा कि लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं जो कुछ पूछने लायक होते हैं या जो वैल्यूएबल्स होते हैं, है ना. सो दैट इज हाउ इट इज. यस, तो वैभव ये भी देखो, अभी आपने इक्लिप्स समझ लो यूज ही नहीं किया होता, थियरी में आंसर आएगा कि इसका नहीं. ठीक है. यस ऋतिक, यू नीड टू एक्सप्लोर वन माई इंटरव्यू गाइज, हाउ टू टेल. ऋतिक यूट्यूब पे जाइए और एक बार हाउ टू टेल द प्रोजेक्ट. ओके, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट प्रोजेक्ट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इजी. ओके, पहले मॉडल्स बताने ये मैंने उसको बताया. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. I think guys we are up and आज कम लोग हैं but we have too many people. ऋतिक ये देख लो आप प्लीज, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे. ऋतिक ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे. हेलो. बहुत सिंपल इसमें बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है. प्लीज फॉलो दैट गाइस. बाकी लोग भी इसको देख लीजिए, आपका फायदा है. बाकी आपको सारे फीचर्स समझ में आ रहे हैं इंस्टीट्यूट के, क्योंकि ये सब चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यूनिक मैं चीज़ आप लड़कों को दे सकूँ. एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेनी मोर सपोर्ट्स. एंड ये मॉक इंटरव्यूज वगैरह देते हो कि किसी ने दिए गए मॉक इंटरव्यूज? हेलो, मैंने लिंक भेजी हुई है, इसको स्टोर कर लो. क्लियर? मॉक इंटरव्यूज दिए किसी ने अभी तक? हेलो, जिन्होंने नहीं दिए दीजिए. ये सारे फीचर्स आपको यूज करने हैं, ये सारे फीचर्स आपको यूज करने हैं. ठीक है, सो प्लीज डू दैट प्रॉपरली. तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गाइस, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप कितना समय देते हो. चेतन, दिस इज योर क्वेश्चन. करेक्ट, आप लॉजिक लिख पाते हो बट समय कितना स्पेंड करते हो बोलने पे. कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग. रिकॉर्ड योरसेल्फ, record your answers and listen, improve, again record, listen, improve. चेतन ने समझाना कोई इसका है नहीं. दिस इज वेरी बेसिक और ऐसा ही है. चेतन प्लीज सब लोग फॉलो कीजिएगा. ये सबका प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मार्केट से लोग बाहर निकल रहे हैं इससे, फ्रेशर्स को हायर करने के बाद भी निकाल रहे हैं. सब लोगों को रेडी रहना है. अभी आजकल कंपनियां नया ट्रिक कर रही है. 3 महीने पहले बोलते 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, 3 महीने बाद आपका पैकेज बढ़ाएंगे. ये सुना है क्या? हेलो गाइस, हेलो हेलो एवरीवन. नया ट्रेंड चालू हुआ है, सोच लो आप, क्योंकि 3 महीने वो देखना चाहते हैं कि तुम काम कर पाओगे. ओके, सो प्लीज. या निकिता, द क्वेश्चन इज, आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं. प्लीज गो थ्रू दैट प्लेसमेंट क्वेश्चंस. ओके, ये प्लेलिस्ट आपको दे देता हूँ.
Please go through this playlist. You'll understand many more things. Okay. It's very simple और बहुत अच्छा बनाया हुआ है. Please go through. Guys, जिनको भी प्लेसमेंट की प्लेलिस्ट चाहिए, please go through that. Okay, निकिता करोगी ये? एक बार देखोगी? Yes, sir. बहुत अच्छा. एक कॉपी कर लो, मैंने भेजा हुआ है लिंक आपको. Yes. Okay guys, so thank you very much. I hope हर वीक करूंगा तो कम लड़के रहेंगे तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस ले पाऊंगा, और आज मैंने हर किसी के मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने का ट्राई किया. So I'll try my best to come before you every week so that I will try to solve your questions and try attending guys. It's good only. Okay, जितना ज्यादा आप इस पे ध्यान दोगे आपके लिए अच्छा है. Okay guys, then thank you. See you again. Take advantage of every feature that I'm providing. Okay. Bye bye. Guys, bye bye. See you. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.